1.2 question number 6. Find the true discount, banker's discount and banker's gain on a bill of rupees 4240 due 6 months hence at 9%. तो बिल की अमाउंट क्या है? Amount of bill is 4240. This amount of bill is also taken as sum due. क्योंकि बिल जो है वो 6 महीने के बाद पे होने वाला है, तो 6 महीने के बाद मिलने वाली अमाउंट अगर 4240 है, तो अमाउंट ऑफ द बिल is to be considered as sum due, that is the face value of the bill. Now the period is 6 months. 6 months, that is 6 by 12 years, that is half year. Rate is 9%. 9% per annum. Now they were talking about कि आपको अभी यहाँ पे बैंकर डिस्काउंट, बैंकर गेन और ट्रू डिस्काउंट सब ढूंढना है. तो पहली बात तो बैंकर डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट और बैंकर गेन, इनमें से हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं. बैंकर डिस्काउंट जो है, बैंक जो है वो बिल आप जब डिस्काउंटिंग के लिए लेके जाते हो तब बैंक उसको डिस्काउंट करता है. तो बैंकर डिस्काउंट ये जनरली सम ड्यू पे निकलता है या फेस वैल्यू पे. बैंकर डिस्काउंट इज चार्ज्ड on face value of bill, that is sum due. True discount is charged on present worth. तो अगर 1000 रुपए की 6 महीने बाद 9% पे सम ड्यू अगर 1200 होगा तो बैंकर 1200 पे डिस्काउंट चार्ज करता है और ट्रू डिस्काउंट 1000 पे चार्ज होता है. इसीलिए ट्रू डिस्काउंट हमेशा बैंकर डिस्काउंट से कम रहेगा और उनके बीच का जो भी डिफरेंस है वो होता है बैंकर गेन. We also know that banker gain is actually simple interest on true discount. तो हम लोग इसको अभी यूज करेंगे. Now we'll first see banker discount. तो banker discount will be on 4240 for half year at 9%. And that will come to 190.8. This is banker discount. Now we know that banker gain is banker discount minus true discount. So and banker gain is true discount. N is half year into R is 9 upon 100 is equals to banker discount is 190.8 minus true discount. This true discount will come and get added here. It is 9 by 200 true discount plus true discount is equals to 190.8. True discount into 9 by 200 plus 1 is equals to 190.8. So true discount is 209 by 200 is equals to 190.8. You will get true discount to be 182.58. आप उसको round up भी कर सकते हो 60. Now banker gain will be bank discount minus true discount. So that is 190.80 minus 182.58 and your answer is 8.22. So at the last we'll write down banker discount is 190.8, true discount is 182.58 and banker gain is 8.22. टेक्स्टबुक मध्ये they have rounded up this figure. 58 की जगह पे उन्होंने 6 लिख दिया. हम लोग राउंड अप कर सकते हैं.
तो 1 सेकेंड डिजिट से फर्स्ट डेसिमल डिजिट को उन्होंने राउंड अप कर लिया एंड देन देयर आंसर हियर विल बी 8.0. अगर आपने राउंड अप नहीं किया, स्टिल योर आंसर्स विल बी राइट. The next sum is true discount on a bill is 2,200. True discount. Banker discount is 23,107 sum. If the bill is due 10 months hence, find the rate of interest. 1.2 का 7 sum. अब इन्होंने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पूछा, लेकिन ना फेस वैल्यू दिया, ना प्रेजेंट वर्थ दिया, ना सम ड्यू दिया, कुछ भी नहीं. सिर्फ ट्रू डिस्काउंट बैंकर डिस्काउंट दिया है. तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला. बैंकर गेन इज बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट. सो बैंकर गेन इज 110. लेकिन बैंकर गेन का एक और फॉर्मूला है, ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. सो 110 इज इक्वल्स टू 2200 इंटू 10 अपॉन 12 इंटू आर अपॉन 100. तो ये क्या हो जाएगा? 110 इज इक्वल्स टू 0 0 कैंसल, 22 इंटू 10 अपॉन 12. R will be 110 into 12 upon 220. Your answer is 6. So rate of interest is 6% per annum. Question number 8. A bill of rupees 6395 was drawn on 19 January 2015. तो अमाउंट क्या है बिल का? Amount of bill is 6395. Date of bill, मतलब date of bill drawn, ये हो गया 19th January 2015. पीरियड क्या है बिल का? 8 months. We'll write down whatever is given. Then it is discounted on 28th February 2015 at 8%. So rate is 8% and date of discounting is 28th February. (2015). You have to find out banker discount and cash value. This is banker discount, this is cash value. You have to find banker discount and cash value. Now we will find out the legal due date. Nominal due date क्या होगा इसका? Nominal due date will be 19 September 2015 and legal due date 22nd September 2015. अब हम लोग जब डिस्काउंट करेंगे तो हम लोगों का पीरियड कौन सा होगा? द पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग विल बी फ्रॉम 20th February, जिस दिन आपने डिस्काउंट किया तब से लेके लीगल ड्यू डेट तक. तो डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट इज एप्लीकेबल फॉर द टाइम, banker discount is applicable from 28th February 2015 to
22 सितंबर 2015। तो बैंकर का जो भी डिस्काउंट लगेगा वो इस टाइम स्पैन में लगेगा। इस टाइम पीरियड का लगेगा, तो ये पीरियड हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये पीरियड कौन सा होगा? मार्च, क्योंकि 20 फरवरी है तो उसके तो कोई डेज नहीं है। मार्च के 31 डेज है। अप्रैल के 30 डेज है। मई के 31 है। जून के 30। जुलाई के 31। अगस्त के 31 and September is 22. So find this total. 206. So the period will be 206 divided by 365. This is the period. अब बैंकर डिस्काउंट इस टाइम के लिए लगेगा। So banker discount will be for this period 6395 for 206 upon 365 into 8% 100. So you will find out your banker discount. क्योंकि बैंक जो डिस्काउंट लगाएगा ना वो फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट के लिए लगाएगा। इस टाइम स्पैन के लिए लगाएगा बैंक हमेशा डिस्काउंट। वो डेट ऑफ द बिल से लेके लीगल ड्यू डेट तक नहीं लगाता है, क्योंकि डेट ऑफ बिल 19 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक वो जो बिल है वो ड्रॉवर के पास ही रहा है। 20 फरवरी को उसने डिस्काउंट किया, इसलिए डिस्काउंटिंग का पीरियड 20 फरवरी से लेकर लीगल ड्यू डेट तक होगा। तो ये बैंकर का डिस्काउंट लगेगा 288.74। नाउ कैश वैल्यू, उन्होंने क्योंकि बाद में कैश वैल्यू भी पूछा है। कैश वैल्यू इज ऑलवेज फेस वैल्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट। तो वो क्या हो जाएगा? कैश वैल्यू 6395 माइनस 288.74। 6106.26. So your banker discount is 288.74 and cash value is 6106.26. A bill of rupees 8,000 drawn on 5th January 1998 for 8 months was discounted for 7680 on a certain date. Find the date on which it was discounted at 10%. So what is the face value of the bill? Face value is 8,000. कैश वैल्यू क्या है बिल का? उन्होंने दिया है 7680। रेट ऑफ डिस्काउंट 10%। पीरियड 8 months।
Now they want us to find out the date on which the bill is discounted. अब ये तो पता नहीं है, लेकिन डेट ऑफ बिल पता है. डेट ऑफ बिल इज 5th January 98. तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या होगा बिल का? 8 महीने, तो 5th सितंबर. ये हो गया आपका नॉमिनल ड्यू डेट. तो लीगल ड्यू डेट क्या हो गया? 8 सितंबर. अब आपने जो भी बिल डिस्काउंट किया है वो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके लीगल ड्यू डेट तक का टाइमिंग है. एंड लेट दैट टाइम बी, लेट द पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग बी एन. एन पीरियड के लिए आपने डिस्काउंट किया है, क्योंकि हमको तो पता नहीं कि कौन से डेट पे डिस्काउंटिंग किया है, तो हम लोगों ने एन डेज के लिए डिस्काउंटिंग किया है या एन पीरियड के लिए डिस्काउंटिंग किया है, ऐसे ले लेंगे. तो अब बैंकर डिस्काउंट विल बी, it will be on the cash. See, we'll first find out banker discount, because banker discount is face value minus cash value. So 8,000 minus 7,680, 320 is the banker discount. But banker discount is face value into n into r upon 100. So 320 is equals to 8,000 into n. What is n? Into r, 10% upon 100. It is 320 into 800 n. So what is n? 320 upon 800. So n will be, actually this n is nothing but n by 365, because this will be in days, right? So we'll have it only in n into 365. So n will become 146 days. इसका मतलब आपका जो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है वो 8 सितंबर 1998 से 146 डेज पहले था. तो डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे. तो सितंबर के तो 8 डेज हो गए, अगस्त के हो गए 31 डेज, जुलाई के हो गए 31 डेज, जून के हो गए 30 डेज. ये यहाँ तक तो सिर्फ 100 डेज ही हो गया है. देन मे इज 31 and remaining 15 days will be for April. तो अप्रैल के 15 दिन. इसका मतलब डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या हो गया? April 98. क्योंकि 15 अप्रैल 98 से लेके 8 सितंबर 98 तक ये सितंबर है तो ये 9 है. यहां तक जितना टाइम आता है उसी पीरियड के लिए डिस्काउंट चार्ज किया गया है. And thus we'll have to do a back calculation to find out the date of discounting.